Okay, so everyone open your books, chapter number 8, JavaScript array and function. Meanwhile, I will just check if internet is working here or not. Working very slow. So you all open your books, Peter. Okay, so yesterday we have discussed JavaScript arrays. What is the meaning of array? Anyone wants to tell? I ask you to do the revision. What is the meaning of array, boys? Anyone can define array? No one. Priyanshu wants to explain. Okay. Yes, Priyanshu. Tell me, what is the meaning of array? Array is an special data type which is a collection of different values. Very good. So array is a special data type which is a collection of value. Okay. It means in array we can store multiple values at a time and those value can be of different data type. क्या समझ आया कि array में क्या कर सकते हो आप? First of all, you can store multiple value and those value can be of different data type. Now the thing is, what is the meaning of data type? What is the meaning of data type? Anyone? No one? I explained this thing yesterday only. Okay, so I will explain again. Data type means what kind of value we are going to store. So data type related to the type of value, what kind of value. ठीक है? So here we said array is a special data type which allows you to store multiple value in a single variable name. हम एक single variable name में multiple values को store कर सकते हैं और those value can be of different data type. Okay, clear? Now we have basically three type of data type. If you remember last chapters, number data type, then we have string data type. One second, getting handy. Okay. So we have number data type, string data type, and then we have Boolean data type. These topics we have covered in chapter number 6 if you remember. Okay. So basically we have three types of data type: number, string and Boolean. In number we have integer and float. क्लियर? अभी हम क्या करते थे कि जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करते थे तो उस वेरिएबल में हम या तो इंटीजर स्टोर कर सकते हैं या फ्लोट स्टोर कर सकते हैं, मीन इनमें से कोई एक वैल्यू हम स्टोर करते थे एक टाइम पे, सिर्फ एक वैल्यू और वो भी एक ही डेटा टाइप की. बट एरे में क्या है कि आप एक ही टाइम में एक ही वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हो और वो सारी वैल्यूज आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स की हो सकती है. क्लियर कि एरे क्या होता है? एनी डाउट एनीवन? इसलिए हम बोलते हैं कि एरे हमारा क्या स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है जो आपको अलाउ करता है मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए. क्लियर? ओके. फिर नेक्स्ट आता है कि आप एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हो, कैसे यूज कर सकते हो. ठीक है. सो हम एरे के एलिमेंट को इंडेक्स वैल्यू से यूज कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं. यूजिंग इंडेक्स वैल्यू वी कैन एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एरे. Clear? Mahavir Singh Bhati, tell me the reason why you are sending thumbs down. What makes you to send thumbs down? Any problem, any issue or any doubt?
First of all, stop sending anything in chat box. If I am asking, then only you can send, or if you have any audio or video issue, then you can confirm. But with, other than that, you are not allowed to write or send anything. If we will found you sending anything extra, we will expel you from the live class. Okay? Is it clear to all of you? So stop playing with sending emojis or thumbs up, thumbs down. Again, you all are sending thumbs up, down or thumbs up. But if I will ask something, then you can send me something. But without asking, without any query, no need to send anything. Clear? Divyanshu, what happened? Okay. Now the next is, if we want to access the element array, for that we have to use this index value. Clear? Now, if suppose I have created one array variable and I have taken array name numbers, and in numbers I am storing 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suppose this is I have created this one. Okay, तो यहाँ पे हम अगर हम इस वैल्यू को यूज करना चाहते हैं तो इस वैल्यू को हम कैसे यूज करेंगे? यूजिंग इंडेक्स वैल्यू, ये हमने कल भी डिस्कस किया था. फिर बात आती है कि ये जो इंडेक्स वैल्यू है, महावीर इज सेइंग स्क्रीन इज ब्लर. मैम प्लीज चेक स्क्रीन blur or not. बच्चे ने क्लास बुक ऑन कर रखी है. 1 सेकेंड. So next we have discussed declaration and initialization of array. This topic we have also discussed yesterday. So thing is, so here is one definition that you have to make a note. It is possible to initialize an array during declaration. Such arrays are known as dense array. Means जब आप array को declare करते हो और साथ साथ आप initialize भी करते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? Dense array. ठीक है? If we are initializing an array during the time of declaration, that is known as dense array. Okay, and this was the example that we have done yesterday. Like if you want to write one program to find out, write a program to find out the length of array. अगर आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिससे आपको एरे की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे कर सकते हो? Anyone? Screen is very blurred, so okay, I will not write anything on screen right now. Okay, we will continue with the book part only if you are facing issue. Okay, suppose ये आपका एक प्रोग्राम है, ठीक है? Just ignore the screen for right now. Ignore the screen. ठीक है, अब देखो, अगर हमने इसी प्रोग्राम में एरे का लेंथ फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? हमने एक एरे बनाया जिसका हमने नाम लिया डेज. हमने उसमें कुछ डेज सेव किए, ठीक है? अब हम इसकी लेंथ काउंट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? डेज डॉट लेंथ इन स्मॉल लेटर्स. अगर अब आप इसको रन करोगे तो आपके पास क्या आउटपुट आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट. क्लियर? अगर आपको एरे की लेंथ फाइंड आउट करनी है, फॉर दैट यू हैव टू यूज array name dot length function. Is it clear to all of you this example? Just concentrate on the share screen. Okay, okay. So next we have accessing array element. Accessing array element means अगर आपको array के element को use करना है
प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है। एरे एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड बाय रेफरिंग टू इट्स इंडेक्स नंबर, मीन्स एरे के एलिमेंट को आप कैसे यूज कर सकते हो, इसके इंडेक्स नंबर से। एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, तो एरे का एलिमेंट का जो इंडेक्स है बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। द फर्स्ट एलिमेंट इज रेफर्ड बाय इंडेक्स नंबर 0 एंड सेकेंड एलिमेंट बाय 1 एंड सो ऑन। So you can also modify the element of array by accessing its index। अगर आपको array के element को modify means change करना है, सपोज आपने mon लिखा, फिर आपको उसको mon से monday करना है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो भी आप कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू। सो यू कैन यूज इंडेक्स नंबर टू एक्सेस वैल्यूज इनसाइड एन एरे एज फॉलोज। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल गिवन है बुक में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेज इन स्क्वायर ब्रैकेट इज रिटर्न 0, मीन्स अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है उसके लिए हम क्या लिखेंगे 0, सेकेंड को एक्सेस करना है उसके लिए हम क्या लिखेंगे डेज ब्रैकेट में 1। नाउ सी, ये हमें एक एग्जांपल गिवन है, ठीक है। HTML बॉडी, H3 स्क्रिप्ट, ये सब ऑलरेडी हमें पता है कि हम क्यों यूज करते हैं, वी हैव डन अ लॉट ऑफ एग्जांपल ऑफ जावास्क्रिप्ट। नाउ थिंग इज वी हैव क्रिएटेड वन एरे हियर यूजिंग var days, ठीक है। उसमें हमने क्या ली, कुछ एलिमेंट्स लिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हमने वीकडेज नेम ले लिए। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसमें से किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। हमने लिखा डेज एंड इन ब्रैकेट वी हैव रिटन 3। अगर हम 3 लिख रहे हैं, इट मीन्स वो कौन सी लोकेशन होगी, फोर्थ, क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है, 0 0 1 2 3, तो 3 हमारा कौन सा हो गया, फोर्थ एलिमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ नंबर पे क्या है, 1 2 3 4, थर्सडेज आर फोर्थ एलिमेंट। सो अगर हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट में हमें क्या दिख रहा है, थर्सडे। क्लियर? इफ आई विल डू सम चेंजेस हियर, सपोज इन place of 3 I have written 5. Now tell me the output of this program. Just write your answer in chat box. Everyone, write answer of this program in chat box. कि अगर हम यहाँ पे 3 की जगह 5 कर देंगे, we will write 5 in place of 3, then what will be the output? Very good, Nikhil. So answer will be Saturday, not Friday. Saturday कैसे होगा, देखो 0 पे क्या है, मंडे, 1 पे ट्यूसडे, 2 पे वेडनेसडे, 3 पे थर्सडे, 4 पे फ्राइडे और 5 पे हमारे पास क्या है, सैटरडे। तो अगर हम इसको रन करेंगे, यू कैन सी हियर आउटपुट इज सैटरडे। इज इट क्लियर? नाउ वन मोर टाइम, इफ आई एम राइटिंग हियर 0, then what will be the output? Yes, write your answer in chat box. Very good. So everyone is giving me the correct answer. Answer will be Monday because फर्स्ट लोकेशन हमारी एरे की क्या होती है, 0। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट में हमारे पास क्या आ जाएगा, मंडे। यस, वेरी गुड एवरीवन। सो नेक्स्ट, वन सेकेंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट वी हैव दिस वन, नॉट दिस वन, दिस वन, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट, ठीक है। यहाँ तक हमने किया कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम जस्ट उसमें क्या लिखेंगे, एरे का नेम एंड देन इंडेक्स वैल्यू। सो नेक्स्ट प्रोग्राम है, यू कैन यूज लूप्स टू एक्सेस वैल्यू इनसाइड एन एरे एज फॉलोज, मीन्स हम लूप का यूज करके एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ थिंग इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूप, एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूप? I have explained this thing in your classes many times. What is the meaning of loop? Very good. So loop means repetition. So if we have some task that is repeating again and again, means ऐसा कोई काम जो आपका बार बार हो रहा है, तो उस काम को आप बार बार प्रिंट करने की बजाय, बार बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे। लूप क्या करता है, लूप इज मीन्स वो काम अपने आप होता रहेगा, ठीक है। अब हम इसमें बार बार क्या करें, सी, अब अगर हमें इसके अकॉर्डिंग 7 नेम्स को प्रिंट कराना है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अलग अलग लाइन में, तो हम उसके लिए क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेज 0, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेज 1, मतलब 7 बार आपको सेम लाइन लिखनी पड़ रही थी। तो इन 7 लाइन को बार बार ना लिख के हम क्या करेंगे, एक लाइन में लूप लिखेंगे, जो आपने 7 चैप्टर में पढ़े थे ना, फॉर लूप। तो फॉर लूप का यूज करके हम इन एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। देखो कैसे,
For loop so easy. Yes, Nikhil, it's very easy. Okay, same example we have taken. So here we will write variable days. So this is your array name. Then again we have taken the same example Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ठीक है, सेम एग्जाम्पल हमने लिया. अब हमें क्या करना है, इन एलिमेंट्स को वन बाय वन हर लाइन में प्रिंट करना है. उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, फॉर लूप का. कैसे यूज करेंगे, सी फॉर लूप एक कीवर्ड है, देन ब्रैकेट में आप क्या करोगे, एक वेरिएबल लोगे, ताकि मीन्स ये वेरिएबल क्या करेगा कि आपको इस लूप को कहाँ से कहाँ तक चलाना है. अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, एरे के केस में हर एक लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट आपका कहाँ सेव है, जीरो पे. अगर आपको सारे एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो लूप कहाँ तक चलना चाहिए, मैक्सिमम 6 तक, क्योंकि 0 to 6 आपके एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 7. इतना तो आपको समझ आया कि यहाँ पे आई हमेशा हमारा क्या रहेगा इस केस में, 0, क्योंकि हमें फर्स्ट एलिमेंट को भी प्रिंट कराना है. फिर हमें कब तक प्रिंट कराना है, जब तक आई की वैल्यू 6 नहीं हो जाती. मीन्स जैसे ही आई की वैल्यू 7 होगी वो लूप हमारा खत्म हो जाना चाहिए. क्लियर. तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे, i is equal to 0, i less than equal to 6. मीन्स जब तक i की वैल्यू 6 से कम या 6 नहीं हो जाती. ओके तो जब तक i की वैल्यू आपकी 6 या 6 से कम है तब तक वो लूप चलना चाहिए. देन i प्लस प्लस, जैसे ही एक बार i के लिए 0 के लिए चला, फिर उसमें एक इंक्रीमेंट होगा, नेक्स्ट टाइम फिर उसमें 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ऐसे 1 1 करके आपका इंक्रीमेंट होता है. नेक्स्ट सी, अब यहाँ पे हमारे i की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, 0 है, तो 0 हमारा लेस देन इक्वल टू 6 है, ये कंडीशन भी ट्रू है. जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी कर्सर हमारा कहाँ आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेज, ब्रैकेट में हमने क्या दिया आई, तो अभी आई की वैल्यू क्या है, 0. मीन्स फर्स्ट लाइन में आपका क्या प्रिंट होगा, MON मंडे. उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा BR, BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक, मीन्स मंडे प्रिंट होने के बाद उस कर्सर का ब्रेक हो जाए, एंड देन जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो. कैसे, सी हियर, अगर हम इस आउटपुट को प्रिंट करेंगे तो इस तरह से आपकी आउटपुट आएगी. ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, मंडे, फिर लाइन ब्रेक होके हमारे पास क्या आया, ट्यूसडे. तो हर एक एलिमेंट आपका अलग अलग लाइन में आया. ठीक है, ये तो इस प्रोग्राम की आउटपुट होगी. अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करें, सपोज हमने यहाँ से BR हटा दिया, अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, हु विल टेल. If we have removed BR tag, then tell me what will be the output of this program. Just write your answer in chat box. What will be the output? So here output will be, we will get every element without any space. Means एक horizontal line में Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday सब elements आएंगे, उनके बीच में ना तो कोई कॉमा आएगा ना ही कोई स्पेस. सी हाउ, अगर मैंने इसको रन किया, देखो सारे एलिमेंट्स आए आपके पास, इसमें ना तो कोई कॉमा है ना स्पेस है, और सब एक साथ है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया कि हमें स्पेस चाहिए. हमने डायरेक्ट क्या लिखा, डेज आई, तो वो क्या करेगा, हर बार लूप रन होगा उसको प्रिंट करेगा, फिर रन होगा उसको प्रिंट करेगा, लेकिन उसमें कोई स्पेस प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि जो हम कमांड देंगे कंप्यूटर तो वही काम करेगा. यस, अगर हम यहाँ पे अब वापिस से BR लिखेंगे, ठीक है, देन यू कैन सी द डिफरेंस. अब हमारा सारा किस में आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, क्योंकि मंडे प्रिंट होने के बाद उसको क्या मिलेगा, ब्रेक. ब्रेक मीन्स इस लाइन को छोड़ो नेक्स्ट में जाओ, फिर ट्यूसडे प्रिंट होगा, फिर ब्रेक, फिर इस लाइन को छोड़ो नेक्स्ट में जाओ. तो इस तरह से ब्रेक टैग आपका काम करेगा. ठीक है, नाउ आई विल डू सम मोर चेंजेस, जस्ट चेक. नाउ टेल मी द आउटपुट. हमने i लेस देन इक्वल टू 6 की जगह i लेस देन इक्वल टू 5 कर दिया, तो आउटपुट क्या आएगा, just read this program and tell me what will be the output of this program. No, just read it carefully beta. Yes beta, till Sunday we will get the output. Sorry, Saturday. हमने क्या किया, लूप को कहाँ तक चलाया, till 5 तक. तो जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी, सैटरडे हमारा प्रिंट होगा, लूप हमारा क्या हो जाएगा, एग्जिट. संडे हमारा प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि हमने कंडीशन में क्या लगाया, जब तक i की वैल्यू क्या है, 5 से छोटी या फिर 5 के बराबर है, तब तक ये लूप चले और फिर वो एग्जिट हो जाए. तो जैसे हम इसको रन करेंगे,
You can see we will get here Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. No Sunday is here. ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा और चेंज करेंगे. Now tell me the output. So this example will clarify your last chapter also. Yes, tell me fast. Okay, very good. So till 3 we will get output till Thursday. Now one more change is here. Now tell me the output. If you will tell the answer of this problem, it means you are expert in for loop right now. Yes, output of this one. Students are telling Wednesday, some students are telling Thursday. Just check it and then tell me the output. So it will print element number 2 and element number 3. Now tell me the output. Yes, not Wednesday to Thursday means we will get. तो यहाँ पे क्या होगा, आई लूप आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 पे. 2 हमारा क्या है, वेनेसडे. वेनेसडे प्रिंट होगा, फिर इसने इंक्रीमेंट किया 3. तो जैसे ही 3 से बड़ा एलिमेंट जाएगा, 4 वैल्यू होगी तो वो एग्जिट हो जाएगा. इट मीन्स वेनेसडे और थर्सडे आपका इस प्रोग्राम में प्रिंट होगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट, एनीवन? किसी को कोई भी डाउट बेटा? Clear to all of you? Okay, so now next. So next we have functions. क्या होते हैं functions? Anyone? What is the meaning of function? Rajveer, it's okay beta, we get the output of all the program. Thank you. Now we have moved to the next topic, functions. No doubt. Aman is saying program means